Hello dear students, myself Anuj Singh. I welcomes you all to my YouTube channel. Okay, so in the previous video lecture, we had discussed about electric field intensity due to a point charge and electric field intensity due to two charges and electric field intensity due to a system of charges, that is number of charges. And we already discussed in the previous video lecture about electric field lines and their properties. Okay, so now in this video lecture we will discuss about electric dipole moment, okay, and we'll discuss about the dipole field, and after that we will discuss about axial line and equatorial line. After discussing axial line and equatorial line, we will discuss about the electric field intensity due to an electric dipole at a point on the axial line and at a point on the equatorial line. Okay, so these will be the topics of our video lecture. Okay, so let's start the lecture. So as our first topic is electric dipole. So what is electric dipole? When two charges of equal magnitude and opposite nature, one is of positive and another one is of negative, that is two equal and opposite charges separated through a certain distance constitute an electric dipole. That means दो charges जिनके magnitude same हों और उनके जो चार्जेस हैं वो अपोजिट हों, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज बट सेम मैग्नीट्यूड के, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ठीक है, इस तरह से, या एक प्लस टू क्यू एक माइनस टू क्यू, ठीक, सेपरेटेड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेट हों, इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है. सो आई एम राइटिंग डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो विल टेक टू चार्जेस, लेट दिस चार्ज इज प्लस क्यू and there is another charge, let it is minus q. So the distance of separation between these two charges is 2l. We have considered it as 2l. We can take it as 2a, we can take it as 2d. Okay, we will take it as in the form of 2. Okay, so 2a, 2d or 2l. Okay, so it is the center. This distance will be L and this will also be L. Okay, so it is an electric dipole. Clear? Here this distance 2L, it is called dipole length. What it is called? Dipole length. Now we'll discuss the examples of the electric dipole. So molecules of water, ammonia, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड अल्कोहल्स, ठीक है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ. So electric dipole moment is defined as the product of magnitude of either charge of the dipole and the dipole length. That is, it is the dipole. If we talk about electric dipole moment, then it is defined as the P equal to Q into 2L. तो यहाँ पे देखिए ये चार्ज है माइनस Q, ये चार्ज है प्लस Q, इनके बीच की डिस्टेंस 2L. इट इज द डाइपोल लेंथ. क्लियर. अब जो है यहाँ पर जो आपका माइनस क्यू या प्लस क्यू, कोई से भी चार्ज का आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका क्यू ही रहेगा, ठीक है, वेदर इट मे बी प्लस क्यू और वेदर इट इज माइनस क्यू. सो आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे माइनस क्यू का तो क्या आएगा क्यू, अगर मैग्नीट्यूड प्लस क्यू का निकालेंगे तो क्या आएगा क्यू. तो आप इनमें से कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, कोई एक चार्ज, ठीक है, तो उसका क्या लेना आपको. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ. सो magnitude of either charge we have taken as q and the dipole length is 2l. Clear? The direction of electric dipole moment is from, ये आपको ध्यान रखना है, is from negative to positive. ये point to remember है, ठीक है, तो it is p. So the direction of electric dipole moment is from negative to positive. लेकिन हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन आपको बताई थी,
पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ये अपोजिट होती है, ध्यान रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये चीज समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डाइपोल फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड, इट इज द डाइपोल फील्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल is called dipole. Clear? Now we will discuss about axial line and equatorial line. What is axial line? What is equatorial line? So firstly we will talk about axial line. Axial, that is axis. एक्सेस से पास होने वाली लाइन। देखिए पहले हम जो है क्या करेंगे कि पहले हम डाइपोल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम ये माइनस क्यू चार्ज ले लिए और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डाइपोल लेंथ आपको पता है ये 2l होती है, क्लियर। तो द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ आइदर चार्ज अलोंग द डाइपोल लेंथ, द लाइन which passes through the center of the charges on either side along the dipole length। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। जो लाइन आइदर साइड में पास हो, यानी चाहे वो इस साइड में हो और चाहे इस साइड में हो, ठीक है, और जो कि डाइपोल लेंथ के अलाउंग हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को बोलते हैं हम एक्सियल लाइन, ठीक है। तो ये लाइन जो पास हो रही है हमारी, ये लाइन इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल लाइन, ठीक है। तो आगे हमें केस भी डिस्कस करना है कि एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लेंगे P, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारा टॉपिक है ये नेक्स्ट, ठीक है। तो नाउ आई विल डिस्कस द इक्वेटोरियल लाइन की इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर इक्वेटोरियल लाइन। देखिए फिर से हम एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं, या इसी डायग्राम में आप समझ लीजिए। तो ये जो डाइपोल है, डाइपोल का यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक। द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल, the line which passes through the center of the dipole and perpendicular to the dipole length. So here we will draw the line, that is this line is called equatorial line. This is the equatorial line and this line is axial line. Clear? So I am writing down the definition. The line which passes through the center of the dipole perpendicular to the dipole field. Clear? So students, now we'll discuss about the electric field intensity at a point on the axial line of an electric dipole. Okay, so as we have drawn the dipole here, the dipole is AB. Okay, its dipole length is 2l, l and l divided by we have divided it. Okay, so O is the center of the dipole and there is a point P on the axial line. ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P है, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है पॉइंट P की O से वो R है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से है पॉइंट P की, वो डिस्टेंस है R माइनस L, और माइनस Q चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है R प्लस L। क्लियर? सो let us label the diagram. The field, electric field intensity at point P due to charge plus Q will be outward. So this arrow is for the electric field intensity at point P due to charge plus Q, which is placed at point B. So it is EB, E सफिक्स B। इसको हमने EB से रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको E सफिक्स प्लस भी कर सकते थे क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो अपना रिप्रेजेंटेशन का अपना तरीका है, जैसे भी आपको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर जो है ये होगा, ये अंदर की तरफ किसकी वजह से होता है? माइनस जब चार्ज होता है तो माइनस की वजह से अंदर की तरफ, तो ये EA हो गया। क्लियर? सो लेवलिंग इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज
प्लस क्यू एंड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, तो इंटेंसिटी के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत होगी, तो चार्ज Q से पॉइंट P तक की डिस्टेंस है R माइनस एल और चार्ज माइनस Q से P तक की डिस्टेंस है R प्लस एल। तो हमें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो डिस्टेंस होती है। तो अब हमने क्या करा कि EB और EA निकाल लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि EB और EA दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था, व्हेन टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। ठीक है, दूसरे वाले की डायरेक्शन को माइनस कर देते हैं, वो तो मैंने एज एग्जांपल ले लिया है AB और R। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका दोनों का रिजल्टेंट होगा वो होगा E। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय ठीक है, तो वो हो जाएगा E इक्वल टू, देखिए वहां पे जो आपका EB है आप एक वो है इस डायरेक्शन के अलोंग और जो EA है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, EA प्लस माइनस EB। ठीक है, या उसको ऐसे करिए EB प्लस माइनस EA, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हमें अब कैलकुलेट करना है। दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस E, इट इज अवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमें डिराइव करना है इस डेरिवेशन में। तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वल टू, देखिए वैल्यू थी उसकी EB की जो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको EA प्लस माइनस EB भी लिख सकते हो। ठीक है, पर लेकिन वहां पे क्या होगा, रिजल्ट में नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन वो दिखाएगा आपको कि इसकी ओरिएंटेशन जो है अपोजिट है, बस इतना अंतर पड़ेगा और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। अब ये हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये कॉमन है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लिया हमने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे बच रहा है हमारा 1/R माइनस एल टू द होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल टू द होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एलसीएम हमें लेना होगा, तो एलसीएम हम ले लेते हैं R माइनस एल टू द होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल टू द होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे R माइनस एल टू द होल स्क्वायर से R माइनस एल टू द होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या हमारा R प्लस एल टू द होल स्क्वायर, R प्लस एल टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ साइन बीच में माइनस का है तो माइनस लगा दिया हमने। अब क्या होगा, R प्लस एल टू द होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे बचेगा R माइनस एल टू द होल स्क्वायर, ये बच गया। अब एक चीज और देखिए, यहाँ इसके ऊपर पावर कितनी है 2, इसके ऊपर पावर कितनी है 2, सेम पावर्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू R प्लस एल टू द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे इसको। अब ये क्या बन रहा है हमारा A माइनस बी एंड A प्लस बी, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A की जगह पे हमारा R है और B की जगह पे हमारा L है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, क्लियर। सो अब जो डिनोमिनेटर में है उसको आगे वाले टर्म में हम लिखेंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर होल स्क्वायर ओपन करिए, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस के साइन की मल्टीप्लाई में साथ साथ कराता जाऊंगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2RL आएगा, लेकिन ये माइनस बाहर है तो इसकी वजह से 2RL प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में मैंने क्या बताया आपको अभी, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ब्रैकेट करिए क्लोज, और जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करिए, जो बच रहा है उसको बचाइए, और क्या करना है आपको। चलो दूसरा पेन लेते हैं, तो यहाँ पे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, भैया कैंसिल। तो अब हमें क्या मिल जाता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2RL और 2RL कितने हो गए, तो आंसर है 4RL हो गए, अपॉन R स्क्वायर, चलो इसको सिंपल ब्रैकेट कर लीजिए, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक,
तो ये रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ तक। अब यहाँ तक जो रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट में हमें जो हमारी पुरानी जो नॉलेज है उसका यूज करना पड़ेगा। पुरानी नॉलेज क्या, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इसको ब्रेक करिए, क्योंकि यहाँ Q बैठा है और इसको 2L की फॉर्म में लेके आइए। तो इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 और Q इंटू 4RL को हम लिखेंगे 2L इंटू 2R। लिख सकते हैं इसको 4RL इक्वल टू 2L इंटू 2R। एक ही तो बात है, 2 इंटू 2 4 और LR या RL, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे Q इंटू 2L इक्वल टू, बट Q इंटू 2L इक्वल टू P, ठीक, क्लियर। अब देखिए मैं साइड में बताता हूँ आपको। बोर्ड छोटा पड़ गया। तो अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिजल्ट इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ डाइपोल इज ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, ठीक है, अगर डाइपोल वेरी शॉर्ट लेंथ का है देन तब कंडीशन क्या होगी, R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। का मतलब क्या है आप समझिए। देखिए अगर डाइपोल जो है बहुत शॉर्ट लेंथ का हो, हम डाइपोल को ऐसे करके ऐसे ले लें, इतना सा डाइपोल ले लें, तो अब ये जो पॉइंट है P, इसकी जो डिस्टेंस R है कंपेयर टू L बहुत बहुत बड़ी होगी, तो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर वी ऑब्टेन E इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन, देखिए यहां से L स्क्वायर जाएगा तो ये खत्म, और ये पावर है 2 और इसकी भी पावर 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो R टू द पावर 4, तो यहाँ पे एक कैंसिल पावर 3 बच जाएंगी, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब, ठीक। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब, ये भी ध्यान रखना है आपको। So students, now we'll discuss about the electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, डाइपोल हमारा है ये, इसको आप ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, और पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन के बारे में आपको बताया था, एक लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, और डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट P है और जो कि R डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस है यहाँ की, इसको आप लेबल कर लीजिए, इसको बोल दीजिए आप A और इसको B। तो जो डिस्टेंस है BP वो अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको लर्न रखना है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइपोल है, डाइपोल से ये वाली जो लाइन है ये थीटा इंक्लिनेशन पे है, ठीक। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड होगा, तो ये हमने जो है E1 दिखा दिया, और नेगेटिव की वजह से इनसाइड होगा तो ये हमने E2 दिखा दिया, ठीक है। ये E1 और ये E2, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का, यानी ये जो दो वेक्टर्स हैं हमारे E1 और E2, ये जो E1 है आपका, E1 इस तरह से है, और जो E2 है, E2 इस तरह से है। सो दीज आर फॉर्मिंग what? These are forming the two adjacent sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम की adjacent sides को ये फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, इट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे ऐसे, ठीक है, और पैरेललोग्राम का ये डायगोनल हो जाएगा।
तो ये डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। पहले हमें ये काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली चार्ज प्लस Q की वजह से, ये आ गई हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर अलोंग BP का अलोंग होगी ये, ठीक है। और E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर द रूट, ये जो डिस्टेंस है हमारी अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा होल स्क्वायर से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड हम क्या करेंगे, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q है ये, ठीक है। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर अलोंग PA, ये PA के अलोंग, P से A की तरफ होगी ये, क्योंकि अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो अलोंग PA, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। यहाँ तक बात समझ करेंगे। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट पॉइंट P पर, जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे E इक्वल टू अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आप देख रहे हो ये एंगल जो है E1 और E2 के बीच में 2 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन E1 इक्वल टू E2 आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से E1 और E2 दोनों इक्वल है। मान लिया हमने कि वो E है, ठीक है। तो हमने E इक्वल टू ले लिया E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा, तो यहाँ पे 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा। अब ये E स्क्वायर 2E स्क्वायर हो गया प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा, फिर क्या करेंगे हम जो है 2E स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों से, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये 2E स्क्वायर तो हमारा था ये पहले से, 1 भी था तो 1 लिखा, और इन प्लेस ऑफ cos 2 थीटा हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 ये वाला जो है इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये 2E स्क्वायर इंटू 2, तो 4E स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा ये आ गया। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2E cos थीटा ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम cos थीटा निकालेंगे फ्रॉम फिगर cos थीटा। अब देखिए फिगर से cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है L, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू L अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। तो अब देयरफॉर E इक्वल टू, अब देखिए जो E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू दोनों की इक्वेशन की सेम है, तो हम जो है इसको पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और था हमारा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, इंटू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और एक हमारे यहाँ 2 और रह गया ये, ठीक है। तो हम जो है अब क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे cos थीटा की। वैल्यू cos थीटा की लगाने पर जो है हमें मिल जाएगा, देखिए 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जो आपको पता है कि जैसे अगर कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर रूट के अंदर है तो उसका मतलब उसकी पावर होती है हाफ, तो ये इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है और ये सेम है, ठीक है। तो इनकी पावर कितनी हो गई, 1 होल 1/2, ठीक है, दैट इज 3/2। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू Q इंटू 2L। अब देखिए जो 2 है इसको L के साथ पहुंचा देते हैं, Q इंटू 2L, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, वो था हमारे पास, और अपॉन इसको लिखते हैं हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, क्लियर। सो बट Q इंटू 2L इक्वल टू P इक्वल टू, सो इट विल बी इक्वल टू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, क्योंकि Q इंटू 2L इक्वल टू होता है P, क्लियर है। तो एज इन द प्रीवियस केस we consider that if the dipole is of very short length, then L square can be neglected. Here also we can consider that if the dipole is of very short length, then L square can be neglected. Then in that situation what we will obtain, okay, so I am erasing it.
So I am noting it here. If the dipole is of very short length, ठीक है, therefore r square is very greater than l square, hence so l square can be neglected. Okay, therefore E equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r square to the whole power 3/2. तो ये 3/2 जब करेंगे हम इसको r स्क्वायर का होल पावर 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो r क्यूब हमें मिल जाएगा, r क्यूब. तो देयरफॉर E इक्वल टू हमें मिल जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब. तो ये E इक्वेटोरियल आ गया आपका. ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ E इक्वेटोरियल. क्लियर? So we have obtained the electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole, that is E. We can mention here E equatorial. E equatorial. Okay. So E equatorial equal to 1 upon 4 pi epsilon P upon r cube. As in the previous case, we have obtained the result E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. ठीक है. So if we find out the ratio of E axial to the E equatorial, E axial to the E equatorial, then what it will be, equal to 2:1. Okay, so it will be the ratio between the E axial and E equatorial. Okay students, so आज के वीडियो में इतना ही. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, थैंक यू.